ইতিমধ্যে আমি জনাইছো জুনাইত উপস্থিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু এই মুহূৰ্তত হেলিকপ্টাৰৰ পৰা অৱতৰণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু ক্ষন্তেক পিছতে মঞ্চত উপবিষ্ট হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী। ভুৱন পেগুৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ তিনিটা কাৰ্যসূচীৰে অসমত উপস্থিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। জুনাইত ভুৱন পেগুৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত নামিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী আৰু তাৰ পিছতে মাজুলীত উপস্থিত হ'ব। মাজুলীত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব অমিত শ্বাহে আৰু তাৰ পিছতে বিয়লিৰ ভাগত ওদালগুৰিলৈ যাব। ওদালগুৰিৰ UPPL প্ৰাৰ্থী গোবিন্দ বসুমতাৰীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব অমিত শ্বাহে। এয়া জুনাইৰ জনসভাত উপস্থিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু কিছু সময় পিছতে মঞ্চত উপস্থিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী। লগত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছেহি ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আৰু সকলোকে এটি হাত চাপৰিৰে তেখেতক সম্ভাষণ জনাবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো। জোৰেৰে এটি হাত চাপৰি আৰু জোৰেৰে। এয়া ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছেহি অমিত শ্বাহ আৰু তেখেতক অসমৰ চিলাপথাৰৰ ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা উষ্ম আদৰণি জনাবলৈ বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছো। আৰু এটা হাত চাপৰিৰে তেখেতক উষ্ম আদৰণি জনাবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো। এয়া তেখেতক সম্ভাষণ জনাবলৈ আগবাঢ়িছে আৰু তেখেতক আমি নিৰ্দিষ্ট কৰি ৰখা আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি আমাৰ মাজত অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ লগতে উপস্থিত আছে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতকো এটি হাত চাপৰিৰে সম্ভাষণ জনাবলৈ আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছো। আৰু তেখেতক যিহেতু সময় খুব কম তেখেতৰ বহুমূলীয়া বক্তব্য আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। আজি এই জুনাই সমষ্টিত আয়োজিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ অহা, আমাক আশীৰ্বাদ দিবলৈ অহা ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় শক্তিশালী গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, আজি এই মঞ্চত উপস্থিত থকা লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় সাংসদ প্ৰধান বৰুৱা ডাঙৰীয়া, মঞ্চত উপস্থিত থকা আৰু এই নিৰ্বাচনৰ মিত্ৰজোঁটৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিধায়ক ভুৱন পেগু ডাঙৰীয়া, সভাত উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, পৰম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আৰু সাংবাদিক বন্ধুসকল, জয় জয়তে। আজি এই শুভক্ষণত উপস্থিত থকা জুনাই সমষ্টিৰ সমূহ ৰাইজলৈ মই গভীৰ শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পৰম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্ব চলা NDA চৰকাৰখনে 2014 চনৰ পৰা মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আজি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে যি উন্নয়নৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি হৈছে আৰু লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য ৰাজ্যৰ লগতে অসমক উন্নয়নৰ দিশত আগুৱাই নিয়াৰ বাবে মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, তাৰ বাবে আজি অসমৰ বুকুত বসবাস কৰা বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ 36খন জিলাৰ ৰাইজ উপকৃত হৈছে। আজি আমি সকলোৱে এই কথা উপলব্ধি কৰিব লাগিব। এই বগীবিল দলং কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকালত কোনোদিনেই সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাছিল, কিন্তু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপৰ বাবে আজি বগীবিল দলঙৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু মুকলি কৰা হ'ল আৰু জুনাইৰ লগতে ধেমাজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উত্তৰ পাৰৰ ৰাইজৰ যাতায়াতৰ এটা উল্লেখযোগ্য সফলতা, আজি উল্লেখযোগ্য আজি আমাৰ বাবে বতৰা সম্ভৱ হৈ উঠিল। পৰম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ,
আপোনালোকে মনত পেলাওক 2014লৈকে জুলাইলৈকে এখনো ট্ৰেইন নাছিল, কিন্তু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া দায়িত্ব লোৱাৰ পাছত আমাৰ এই উত্তৰ পাৰৰ ৰাইজৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা সুচল কৰিবৰ বাবে 17খন ট্ৰেইন আমাক উপহাৰ দিলে। পৰম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, এই কথা আমি সকলোৱে উপলব্ধি কৰিব লাগিব। আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উত্তৰ পাৰ কংগ্ৰেছৰ দিনত সম্পূৰ্ণৰূপে অৱহেলিত আছিল, সম্পূৰ্ণৰূপে কংগ্ৰেছে আওকাণ কৰিছিল। জোনাইৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে এই অঞ্চলটোক গুৰুত্ব নিদিয়াৰ বাবে পিছ পৰি আছিল, কিন্তু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এই অঞ্চলটোক অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত আগুৱাই নিয়াৰ বাবে যিবিলাক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ল'লে, তাৰ বাবে আজি ট্ৰেইনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি ৰাস্তা পদূলি দলং নিৰ্মাণ হ'ল, আৰু গোগামুখত আজি ইণ্ডিয়ান এগ্ৰিকালচাৰ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট হ'ল, আজি ধেমাজিত ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ হ'ল, লখিমপুৰত মেডিকেল কলেজ, এনেধৰণে গোটেই উত্তৰ পাৰটোক জাকত জিলিকা অঞ্চল হিচাপে গঢ়ি তোলাত যি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ল'লে, তাৰ বাবে অসমৰ ৰাইজৰ হৈ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু জোনাই সমষ্টিৰ ৰাইজৰ হৈও মই আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, এতিয়া মোৰ এটাই আপোনালোকৰ ওচৰত অনুৰোধ, আপোনালোকে দেখিছে যোৱা কাৰ্যকালটোত ভুৱন পেগু ডাঙৰীয়াই বিধায়ক হিচাপে এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাবে যি নিষ্ঠাৰে কাম কৰিলে, তাৰ বাবে মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ এই নিৰ্বাচনত জোনাই সমষ্টিৰ ৰাইজে ভুৱন পেগুক বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰাই পুনৰ বিধানসভালৈ মৰ্যাদা সহকাৰে প্ৰেৰণ কৰিব। কৰিবনে নাই ৰাইজ? কৰিবনে নাই? কৰিবনে নাই? যদি কৰে এটা মোৰ সৈতে জয়ধ্বনি দিয়ক। ভুৱন পেগু জিন্দাবাদ, ভুৱন পেগু জিন্দাবাদ। পদুমৰ ছবিত ভোট দিয়ক, পদুমৰ ছবিত ভোট দিয়ক। পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, মই আৰু বক্তব্য দীঘলীয়া নকৰোঁ। আজি আমি সকলোৱে আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছোঁ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া বক্তব্য শুনিবৰ বাবে। এগৰাকী শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা, যিগৰাকীয়ে গৃহমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লৈ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতেই শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ বাবে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ লৈছে, আৰু আমাৰ অসমৰ বুকুতো আজি শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ লৈছে। গতিকে আমি সকলোৱে তেখেতক অসমৰ ৰাইজৰ হৈ কৃতজ্ঞতা জনাব লাগিব। অমিত শ্বাহ জিন্দাবাদ, অমিত শ্বাহ জিন্দাবাদ। ধন্যবাদ। ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি। মই এতিয়া অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক তেখেতৰ বক্তব্য দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, जोनाई वाले ऐसे बोलेंगे क्या? विकसित आसाम बनाना है या नहीं बनाना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित असम के सम्माननीय मुख्यमंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, हमारे लखीमपुर के लोकप्रिय सांसद प्रदन बरुआ जी, जिनको जिताने के लिए अपील करने के लिए मैं आया हूं, ऐसे हमारे लोकप्रिय विधायक श्री भुवन पेगू जी। भुवन यहां आ जाओ साइड में। हमारे प्रेम दत्ता जी, महीनेश्वर जी, गंगा पेंगू जी, हिरेन कचारी जी, परमानंद चारिंगिया जी, और आज इस चिलचिलाती धूप के अंदर 2.5 घंटे से खुले सर पर बैठे हुए हजारों की संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, आपकी इस तपस्या को मैं 2 हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूं।
मित्रों, ये भीड़ देखकर ही मुझे आज विश्वास हो गया है कि आसाम में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये जोनाई क्षेत्र के अंदर इतनी चिलचिलाती धूप में खुले सर आप लोग बैठे हो, यही बताता है कि मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार आसाम विकास के रास्ते पर चल पड़ेगा। मित्रों, मैं आज यहां पर 5 साल पहले के आसाम की बात करने आया हूं। 5 साल पहले 10 साल तक कांग्रेस का शासन था। किस प्रकार का आसाम था? आंदोलन चल रहे थे, गोलियां चल रही थी, लोग मर रहे थे, दिनों दिनों तक कर्फ्यू था, आतंकवाद ने अपनी सीमाएं लांघ दी थी, सारे आतंकवादी आतंकवाद का नंगा नाच खेल रहे थे और आसाम में विकास का कहीं पर भी कोई नामो निशान नहीं था। मैं पार्टी का अध्यक्ष था, आपको विनती करने के लिए आया था कि एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, हमें 5 साल दीजिए, हम आसाम को बदल देंगे। माताओं, बहनों, भाइयों, आपने 5 साल दिया, 5 साल के अंदर आज आसाम विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। मुझे बताइए, 5 साल में एक भी आंदोलन हुआ है क्या? जोर से बोलिए, हुआ है क्या? कोई गोली से मरता है क्या? आतंकवाद होता है क्या? इसका मतलब साफ है, जब कांग्रेस आती है अशांति आती है और भाजपा आती है विकास आता है। आपको आतंकवाद चाहिए या विकास चाहिए, इसका चुनाव करने का ये चुनाव किसी विधायक को चुनने का नहीं है, किसी मुख्यमंत्री को चुनने का नहीं है, आसाम के भविष्य को संवारने का चुनाव है। और मित्रों, मैं आज आपको बताने आया हूं, हमने 5 साल में आसाम का विकास तो किया ही किया, मगर साथ साथ आसाम के गौरव को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी 15 साल तक यहां से सरदार मनमोहन सिंह सांसद बनकर गए, 10 साल तक कांग्रेस की सरकार चली, मगर भूपेन हजारिका को भारत रत्न नहीं मिलता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भूपेन दा को भारत रत्न देने का काम किया। और विकास के मामले में मोदी जी का कोई स्पर्धा नहीं कर सकता। सिर्फ यही बजट के अंदर आसाम के लिए 53,000 करोड़ रुपए का काम मोदी जी ने घोषित किया है। मित्रों, 53,000 करोड़ रुपए। और मैं आपको बताता हूं, ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 नए ब्रिज बनाए, तेल के क्षेत्रों के विकास के लिए 46,000 करोड़ रुपया दिया। गुवाहाटी पर नवा हवाई अड्डा बन रहा है, जोरहाट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बन रहा है, टिहू में फूड पार्क बन रहा है, जोगीघोपा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है। इसके साथ साथ गोगामुख में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र बन रहा है। और अभी इस सर्वानंद जी की उपस्थिति में प्रधानमंत्री जी ने 1,06,000 लोगों को जमीन का पट्टा देकर उसका अधिकार देने का काम किया है। गैस की रॉयल्टी का 8,000 करोड़ रुपया इतने सालों से बकाया था, कभी नहीं देता था, मगर भाजपा की सरकार बनी, 3 ही महीने में सर्वानंद जी केंद्रीय मंत्री थे, उसको हमने 8,000 करोड़ रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मित्रों, जोनाई के विकास के लिए भी ढेर सारा काम किया है। अग्निशमन, फायर ब्रिगेड,
और आपातकालीन सेवा स्टेशनों का निर्माण पूरा हो गया है। दोमाजी में ट्रांसफॉर्मर क्षमता जो 24 घंटा बिजली पहुंचाएगी उसका विस्तार किया गया है। 45 करोड़ रुपए की लागत से दोमाजी में एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनने की बात शुरू हो गई है, जिससे हमारे बच्चे इंजीनियर बनकर यहीं पर आपकी सेवा करते करते अपना रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री जी ने विशेष पैकेज के तहत मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट बनाया है, जिससे मेरी माताएं बहनें एक गाय और एक भैंस पालकर पूरा घर का खर्चा उठा पाए। इस प्रकार की दोमाजी में टाउन वाटर सप्लाई स्कीम इतने सालों से नहीं हो रही थी। हमारे विधायक भुवन ने बड़ा जोर लगाकर वाटर सप्लाई स्कीम को मंजूर कराकर हर घर में पानी पहुंचे इसकी व्यवस्था की है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भी दोमाजी में ही लाए हैं। ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का काम किया है और 25 ब्रॉडबैंड से जुड़ी हुई पंचायतें आज काम भी शुरू कर दिया है। लगभग 77,000 घरों में, सिर्फ दोमाजी में 77,000 घरों में टॉयलेट बनाने का काम, शौचालय बनाने का काम पूरा कर दिया है और 24,000 गरीबों को, दोमाजी में 24,000 गरीबों को घर देने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा किया है। 39,000 माताओं को गैस का सिलेंडर दिया है। 40,000 लोगों के घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है। मैं तो भुवन को कहता हूं, भैया विधायक रहते हुए इतना काम कैसे करा लेते हो, हमें भी जरा सिखाओ तो हमारे क्षेत्र में हमारा भी भला हो जाएगा। और मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ऐसी प्रत्याशी को फिर से लेकर आई है जिसको आपने जिताकर गुवाहाटी में भेजना है। और एक और, मोदी जी ने असम का इतना विकास किया, सर्बानंद हेमंत शर्मा ने असम को आंदोलन मुक्त बनाया, आतंकवाद मुक्त बनाया, सभी जनजातियों को जोड़ने का काम किया, सबकी संस्कृति की रक्षा करने का काम किया, सबके साहित्य की रक्षा करने का काम किया। और दूसरी ओर कांग्रेस अजमल के साथ आ रही है, अजमल के साथ। ये कांग्रेस पार्टी अपनी गोदी में बदरुद्दीन अजमल को बिठाकर आई है। मुझे बताओ भैया, भगवान न करे इनके हाथ में सत्ता रह गई तो ये पूरी घुसपैठ बेरोक टोक चलेगी। मुझे बताओ, जुनाई वाले बताए जरा, आप घुसपैठ ये चाहते हो क्या? जोर से बोलो, चाहते हो क्या? आसाम में घुसपैठ रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? आसाम से घुसपैठी को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये राहुल गांधी आए थे। मैं आज यहां से राहुल गांधी को सार्वजनिक रूप से पूछना चाहता हूं, एक और आप आसाम की अस्मिता की बात करते हैं और दूसरी ओर ये आधुनिक काला पहाड़ जानते हो ना? ये आधुनिक काला पहाड़ बदरुद्दीन अजमल को लेकर चलते हो, कैसे आसाम की अस्मिता की रक्षा करोगे भाई बताओ तो? बदरुद्दीन अजमल अगर सत्ता में आया तो घुसपैठ रुक सकती है भाई? रुक सकती है क्या? रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? क्या फिर से हम घुसपैठ का फ्लो चालू कराना चाहते? ये कांग्रेस पार्टियों को शर्म आनी चाहिए बदरुद्दीन अजमल के साथ आते हुए। मित्रों, हम असमिया और मिसिंग गौरव का सम्मान करते हैं। मिसिंग जाति यहां पर बहुत बड़ी संस्था है और हम वो पहले उपेक्षित थी। मैं आज आपको वादा करता हूं, यहां से मैं सर्बानंद के वहां भी जा रहा हूं, सर्बानंद जी के वहां भी मिसिंग जाति बहुत बड़ी संख्या में रहती है। मिसिंग जाति वाले चिंता न करें, आपके विकास के लिए एक अलग बोर्ड बनाने का नई सरकार बनेगी तो हम आपको वादा करते हैं। कांग्रेस की नीति है
कांग्रेस की नीति है भेद करो, झगड़ाओ, तोड़ो और राज करो। भाजपा की नीति है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी जी के नेतृत्व में सभी छोटी छोटी जनजातियों को जोड़कर उनका विकास कर समग्र आसाम का विकास करना, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। इन्होंने आसामियों और बंगालियों को झगड़ाया, इन्होंने प्लेन्स और हिल्स के बीच में झगड़ा कराया, इन्होंने अपर आसाम और लोअर आसाम के बीच में झगड़ा कराया। 5 साल में हमने 5 ब्रिज बनाकर दोनों आसाम को साथ में लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 2000 से ज्यादा उग्रवादियों ने शांति का रास्ता चुना है और बोडोलैंड जो समस्या इतने सालों से आसाम को चैन से सोने नहीं देती थी, बोडो समझौता कर आज बोडोलैंड में से आतंकवाद को हमेशा के लिए समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। मित्रों, हम बम धमाके, घुसपैठ और आतंकवाद में विश्वास नहीं करते। मोदी जी ने हर घर में शौचालय पहुंचाए, हर घर में बिजली पहुंचाई, हर घर में साफ पीने का पानी पहुंचा है। 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा आपका मोदी जी चुका रहे हैं और इसलिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लेकर आए हैं और मोदी जी आसाम को अभी भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। मित्रों, मैं आज आप स्ट्रॉन्ग माने